Good morning, 8th class. Today we are going to discuss a chapter 2nd of your English textbook, Androcles and the Lion. My dear friends, ये एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई होप आप ये वीडियो और इसके आगे के पार्ट्स केयरफुली देखेंगे, फिर आपको ये कहानी पूरी तरीके से मालूम हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड courteous man called Androcles. But he had a very cruel master in those days. Kings, nobles and other wealthy men used poor pupils as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their masters, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. ये कहानी उसी समय की है जब बड़े बड़े ज़मींदार और राजा महाराजा लोगों को, इंसानों को अपना गुलाम बनाया करते थे। एंड्रोकल्स जो है वो भी एक इसी प्रकार का गुलाम था, लेकिन व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन से वो काइंड, जेंटल और कॉर्टियस था। वो बहुत दयालु था, लेकिन उसका जो मास्टर था, यानी कि जिसके अंडर में वो गुलाम था, वो वैसा नहीं था, बहुत ही क्रूएल था। एक क्रूएल किंग के, एक क्रूएल मास्टर के अधीन एंड्रोकल्स जो है वो स्लेव था। स्लेव यानी दास। एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस wicked master. His master starved his slaves and often whipped him. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. My dear friends, recently we have celebrated इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे के दिन स्वाधीनता के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम के बिना आपकी लाइफ क्या होगी, यू नो वेरी वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेम मैटर्स, सेम थिंग्स वेयर गोइंग ऑन इनटू Androcles' mind. What he wanted to escape himself from the clutches. वो खुद को इस गुलामी से बाहर करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसका जो मास्टर था, जो ओनर था, जो मालिक था, he was very cruel और वो अपने स्लेव्स के साथ, गुलामों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता था, जिस वजह से एंड्रोकल्स wanted to क्विट, वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। एंड वॉट हैपन, क्या वो भागा? यस, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर। उसने अपने उस बंधन से अपने आप को बचा लिया। जैसे ही पहला मौका आया वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी, अगर आप ने कोई किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को या किसी को भी अपना बंदी बनाया हुआ है और वो आपकी पकड़ से भाग जाता है, तब क्या आप शांत बैठेंगे या आप उसे ढूंढेंगे? बट नेचुरली यू विल ट्राई टू अगेन फाइंड दैट वन। सच सेम थिंग हैपेंड विथ Androcles. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go
wherever he wished. What is mentioned here? Which kind of Androcles was? Coward or brave? Naturally, he was brave because he tried to escape himself from the clutches of the master. Secondly, he went into the forest where many more wild animals could be and they can eat Androcles. But he was brave, बहुत बहादुर था Androcles, वो डरा नहीं और वो उस जंगल में जानवरों के बीच पहुंच गया। किस टाइप का फील कर रहा था Androcles? जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड। एक पिंजरे में से पक्षी जब बाहर निकलता है तो कैसा फील करता है? He feels free to fly anywhere. Just like Androcles was feeling that he, like a bird, can fly anywhere where he wished. What happened thereafter? Let us see. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, he looked at him piteously as if it was in great pain. My dear friends, suppose you are wandering in a forest or went to a jungle safari and a lion is in front of you. You came to face with a lion. एक शेर आपके सामने आ जाए, आमना सामना आपका एक शेर से हो जाए, what will be the situation? क्या स्थिति होगी? Naturally you will be afraid. Androcles के सामने भी यही हुआ, एक शेर उसके सामने आया और Androcles जो है वो डर गया। शेर और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन शेर जो है, लॉयन जो है, वो बिल्कुल अपनी स्थिति से हिला नहीं, बल्कि उसकी आँखों में दीनता थी, एक परेशानी के भाव दिख रहे थे, जैसे कि वो बहुत तकलीफ़ में है, जैसे एज इफ़ इट वॉज इन ग्रेट पेन, जैसे कि वो बहुत बड़ी तकलीफ़ में है। तो क्या तकलीफ़ हो सकती थी उस शेर को, क्या परेशानी हो सकती थी उसे? आइए देखते हैं। Androcles paused. Then he moved very continuously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered, "Please help me." Its eyes seemed to say. My dear friends, Androcles को लगा कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, और भागने की बजाय वो शेर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बढ़ने लगा। और शेर जो है, जो लॉयन था, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं। इनफैक्ट उसकी आँखों में जो Androcles को दिखाई दिया वो ये था कि शेर उससे कह रहा हो कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए। देन कैन यू गैस किस प्रकार की सहायता उस शेर को लगेगी? देखते हैं। When Androcles drew near, the lion lowered his head and began to lick its paw. Then Androcles saw that lion's paw was wounded, sore and swollen. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. क्या पता चला कि लॉयन जो है, धीरे धीरे Androcles उसके पास पहुंचा और उसके पास पहुंचने के बाद उसे समझ में आया कि ये शेर जो है, लॉयन जो है, उसके पंजे जो हैं वो ज़ख्मी हैं और स्वेल्ड हैं, और इस वजह से लॉयन जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. Androcles ने उसकी चोट को ठीक करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, बट वो डरता था
कि कहीं शेर जो है वो उस पर अटैक ना कर दे। बट नेचुरली यदि आपकी चोट को कोई छुए तो आपको तकलीफ़ होती है और आप रिएक्ट करते हैं अग्रेसिवली, वैसा ही ना हो। बट ऐसा हुआ नहीं। लॉयन को समझ में आ गया कि एंड्रोकल्स जो है वो उसकी मदद करना चाहता है, ऐसा एंड्रोकल्स को लगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ? क्या एंड्रोकल्स उस लॉयन की मदद कर पाया या शांति से लॉयन ने उसे अपने पास आने दिया और उसके बाद उस पर अटैक किया? क्या हुआ आगे? क्या एंड्रोकल्स को शेर ने अपना मील, अपना खाना बना लिया या एंड्रोकल्स ने शेर की मदद की, या वाकई शेर घायल था या वो नाटक कर रहा था? ये सारी चीज़ों का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चाहें तो चैप्टर पूरा रीड करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद गैस कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। टिल देन रीड this chapter, page number 7, and try to answer the questions along with the video into the descriptions. Thank you. Have a nice day.